لیے بڑی خبر آ گئی ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ضلع وسطی کے بعد ضلع جنوبی اور ضلع شرقی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ بیورو چیف چینل 5 نیوز محمد کامران زہری ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ بتائیے کہ کامران، آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی دیکھیں، کراچی والوں کے لیے ایک بہت بڑی اہم خبر ہے اور بلکہ خوشی کی خبر ہے۔ کامران، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو اپڈیٹس دیجیے گا۔ جی بالکل، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی دیکھیں جی، کراچی والوں کے لیے بہت بڑی اہم خوشخبری ہے اور ان لوگوں کے لیے گھروں میں صف ماتم کا سماں ہوگا جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ تہمتیں اور بہتان باندھتے تھے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی صرف اور صرف ضلع وسطی کی حد تک غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کے لیے متحرک ہے اور دوسرے دیگر اضلاع کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی آپریشن نہیں کر رہی۔ شاید کوئی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ضلع وسطی کی عوام کے ساتھ کوئی دیرینہ دشمنی کا معاملہ ہے، لیکن اب وزیر بلدیات سندھ سعید غنی اور ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ساتھ ایک اہم ترین اجلاس ہوا ہے، جس کے اندر اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پورے شہر کراچی کے چپے چپے کے اندر، بالخصوص سب سے پہلے ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر، جہاں کہیں پر بھی انلیگل کنسٹرکشن، غیر قانونی تعمیرات یا پورشن مافیا نظر آئے گی، اس کو آئینی ہاتھوں سے لیا جائے گا اور آپریشن کا آغاز کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ وزیر بلدیات نے اہم اجلاس کے اندر ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے دی گئی بریفنگ کے اندر آپریشن کلین سویپ اپ کا جو ہے نوٹیفیکیشن کا اجرا کر دیا گیا ہے اور ان کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے اور تبادلے تقرریوں کا بھی کہہ دیا گیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اگر کوئی افسران سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ان غیر قانونی تعمیرات کے اندر ملوث ہو تو اس کو بھی نہ بخشا جائے۔ جی خبر دیں آپ کو، بن قاسم میں ریلوے اسٹیشن پر مال گاڑی پٹری سے اتر گئی، جس کے باعث اپ اور ڈاؤن دونوں ٹریکس پر ٹرینوں کے آمد و رفت بند ہو گئی، جس کی وجہ سے کراچی سے لاہور اور لاہور سے کراچی جانے والی متعدد ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے شہریار شوکت ہمیں اپڈیٹ دیں گے۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ بن قاسم ریلوے اسٹیشن پر مال گاڑی پٹری سے اتر گئی ہے اور اس کی وجہ سے اپ اور ڈاؤن دونوں ٹریکس پر ٹرینوں کے آمد و رفت بند ہو گئی ہے اور جس کی وجہ سے کراچی سے لاہور اور لاہور سے کراچی جانے والی متعدد ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں اور مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بن قاسم ریلوے اسٹیشن پر مال گاڑی ٹریک سے اتر گئی، جس کی وجہ سے ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی ہے اور مرمت کا کام اس وقت جاری ہے۔ مناظر بھی اس وقت 5 نیوز کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بن قاسم ریلوے اسٹیشن پر مال گاڑی پٹری سے اتر گئی ہے۔ خبر دیں آپ کو، سعود آباد ملیر میں تولیدی صحت مرکز میں ترقیاتی کام کی تکمیل کے بعد افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی سیکرٹری پاپولیشن حفیظ اللہ عباسی نے شرکت کی، جبکہ ڈائریکٹر ایڈمن شاہ فیصل موہن نے بھی ان کے ہمراہ تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں مقامی افسران، ٹی سی آئی نمائندگان اور RHSA سٹاف کی بھرپور شرکت۔ ملیر کے علاقے سعود آباد میں قائم تولیدی صحت مرکز RHSA میں ٹی سی آئی کے تعاون سے مکمل ہونے والے ترقیاتی کام کے بعد ایک افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں مختلف اداروں کے نمائندگان شریک ہوئے۔ تقریب کے مہمان خصوصی سیکرٹری پاپولیشن حفیظ اللہ عباسی کا پرجوش استقبال کیا گیا، جبکہ ان کے ہمراہ ڈائریکٹر ایڈمن شاہ فیصل موہر، ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر ملیح شاہد میمن اور میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سلوجھنی موجود تھی۔ ٹی سی آئی کی نمائندگی ظفر دھیراج، غضنفر علی اور کامران نے کی، جبکہ RHSA کا مکمل اسٹاف بھی پروگرام میں شریک رہا۔
सेक्रेटरी पॉपुलेशन ने मरकज का तफसीली दौरा किया और सफाई, रिकॉर्ड मैनेजमेंट और स्टाफ की हाजिरी पर इत्मीनान का इजहार किया। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची में ट्रैफिक पुलिस अहलकारों ने डीआईजी ट्रैफिक के अहकामात हवा में उड़ा दिए और चालान करने की बजाय रिश्वत वसूली की जा रही है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गनी चौरंगी से अंदर खिजर हयात चौकी पुलिस सेक्शन, ट्रैफिक पुलिस सेक्शन पे, और हम यहां पर मौजूद हैं एएसआई और एक कांस्टेबल ट्रैफिक से। इनसे हम जानेंगे कि डीआईजी ट्रैफिक ने जो अहकामात जारी किए हैं उसके ऊपर कितना अमल दरामद किया जा रहा है, कौन कौन सी गाड़ी के ऊपर जो है अब आप चालान कर रहे हैं। रक्षा हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, हेलमेट हो गया, उसका लाइसेंस हो गया, ज़्यादातर जो है ना इसको फोकस है उसको चालान दे रहे हैं। मैं आपसे अब जानने की कोशिश करूंगा कि भाई ये बताएं कि जिनके पास लाइसेंस नहीं होता तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। गाड़ी अंदर बंद कर देते हैं, जब वो गाड़ी क्लियर कर देते हैं। अगर मैं ये कहूं कि अभी आपने कुछ देर पहले लाइसेंस ना होने की बिना पर 200 रुपए रिश्वत वसूल की थी, तो उस पर क्या कहेंगे। आप किससे आपने रिश्वत की है? मैंने खुद आपको रिश्वत दी है, आपकी वीडियो बनी हुई है मेरे पास। सर, आप इनके अभी सुपीरियर खड़े हुए हैं, आप इनके सीनियर हैं एएसआई, आप ये बताएं कि ये आपके मातहत यहाँ पे खड़े हुए हैं और आपके सामने ये रिश्वत भी ले रहे हैं, इसके ऊपर आप इनको कोई ताकीद नहीं करते। मेरे सामने नहीं लिया इसने। अच्छा, अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करवाएंगे आप महकमाना। अभी वो तो अफसरान करेंगे ना सर। जी बिल्कुल, यहाँ पर बख्त हुसैन जो कि सिपाही हैं यहाँ पर खिजर हयात चौकी में तैनात हैं, यहाँ खड़े होकर यहाँ पर रोडों के ऊपर खुलेआम जो है वो रिश्वत वसूल करते हैं। हादसा जो है वो मुसलसल रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, मगर ट्रैफिक पुलिस अहलकार वो रिश्वतखोरी में मसरूफ़ हैं। जहाँ डीआईजी ट्रैफिक हैं वो इतने सख्त अहकामात जारी कर रहे हैं, वो उनका कहना है कि फौरी तौर पर चालान किया जाए, मगर यहाँ पर अहलकार जब रिश्वत लेंगे तो कानून पर अमल दरामद कौन करवाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर अपडेट करने के लिए। दरियाए सिंध से 6 केनाल निकालने के खिलाफ कराची यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए एहतजाजी रैली निकाली। रैली से शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि दरियाए सिंध से 6 केनाल निकालने वाले मंसूबे को हम मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। दरियाए सिंध से केनाल निकालना हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। हम उसकी खातिर निकले हैं। हम आपको अपील करते हैं कि कैंटीनों पे ये वक्त ज़ाया करने की बजाय हमारा साथ दें कि हम जालिमों को बता सकें कि सिंधु पे ढाका, सिंधु पे 6 केनाल, सिंधु का पानी हम किसी सूरत आपको चोरी करने नहीं देंगे। सिंधु की जिंदगी, हम अपनी जिंदगी किसी सूरत आपको छीनने नहीं देंगे। वाले से हम ये कहेंगे, हम इसलिए निकले हैं कि हमारे सिंध पे डाका डाला जा रहा है, 6 केनाल वहाँ से निकाले जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। हमारा हक हमसे छीना जा रहा है, तो हम ये इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट से या सबसे अपील करते हैं कि भाई ये ना करें, ये नामंजूर है हमें। ये तो हमारा एक मंसूबा है जो आप पंजाब को एक सहूलत मुहैया कर रहे हैं, उसका बंजर ज़मीन है उसको आबाद करने जा रही है, और आप सुखाने जा रहे हैं। सिंध में पहले ही खानेवाल हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान की जानिब से लोडेड रिक्शा और फटा रिक्शे पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सेक्रेटरी आरटीए में जाहिद हसन की जानिब से 10 से ज्यादा रिक्शों को थाना सिटी खानेवाल थाना सिटी बंद कर दिया गया। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, बताइएगा। सूची हदायत पर डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान की जानिब से सेक्रेटरी आरटीए जाहिद हसन की जानिब से हादसे का सबब बनने वाले लोडर रक्षों के खिलाफ कार्रवाइयाँ और अवामुन्नास को पैगाम दिया जा रहा है। तो मिस्टर मौजूद है मार जाहिद हसन, सेक्रेटरी आरटीए खाने वाले से जाते सर बताएगा हुकूमत की जानिब से लोडर रक्षों पर पाबंदी लगाई गई है और डीसी साहब की हिदायत पर आप आगाही भी दे रहे हैं, आपने रक्षों पर जो है वो कार्रवाई भी किया, क्या कहना चाहेंगे अवामुन्नास के बारे में। जी बिल्कुल, ये जो लोडर रक्षा और ख़ुसूसन इसमें जो फट्टा रक्षा है वो हादसात का बहुत बड़ा सबब है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनके ऊपर बड़े सख्त अहकामात दिए हैं कि इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए, और सबसे पहले उसमें हम टारगेट कर रहे हैं कि जो पंजाब भर में लोडर रक्षा या फट्टा रक्षा जो बनाने वाली वर्कशॉप्स हैं उनका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, और उनको हमने ज़िला खानेवाल में जितनी भी हमारी तमाम को नोटिस जारी कर दिए हैं। जी बिल्कुल, हादसे का सबब बनने वाले लोडर रक्षे और फट्टा रक्षे के खिलाफ कार्रवाइयाँ ऐसे ही जारी रहेंगी।
इनका ये कहना था कि मेरा अवामुनास को ये पैगाम है कि लोडर रक्षा और फटा रक्षा बिल्कुल ना लें, अगर ये लेंगे उनको हैवी जुर्माना और इनके खिलाफ FIR भी दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब प्रोग्राम जिला खानेवाल में कामयाबी के साथ जारी है। शहरियों को साफ सुथरा माहौल की फराहमी के लिए वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर नसीर की रिपोर्ट में। खानेवाल हेडक्वार्टर पर सफाई आगाही वाक और फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च SP चौक से पूरे शहर में किया गया। ADCR गुलाम मुस्तफ़ा फ्लैग मार्च की क़यादत की। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट उस्मान खुर्शीद, सरकारी अफसरान, साफियों और मुलाजमीन समेत सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। इस मौके पर ADCR गुलाम मुस्तफ़ा का कहना था कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का ऐसा इलाके की सफाई हम सब की जिम्मेदारी है। जदीद मशीनरी की मदद से सफाई का अमल जारी है। तो आपके तवस्सुत से हम खानेवाल के लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसके बहुत पॉजिटिव असरात होने हैं। तो आप इसमें हमारे स्टाफ से सुथरा पंजाब की जो आउटसोर्स कंपनीज आई हैं उनसे कोऑपरेट करें। वेस्ट मैनेजमेंट मैनेजर ने कहा है कि शहरी खुली जगह पर गंद फेंकने से गुरेज करें। फ्लैग मार्च का मकसद लोगों में आगाही देना है। मैनेजमेंट मैनेजर ने कहा है कि शहरी खुली जगह पर गंद फेंकने से गुरेज करें। फ्लैग मार्च का मकसद लोगों में आगाही देना है। मैडम डिप्टी कमिश्नर का खास कंसर्न है इस पर। CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ADCG सर बड़ा क्लोजली इस देखते हैं प्रोजेक्ट को, और असल मकसद यही है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, उन्हें बताया जाए कि ये कंपनी एक प्राइवेट काम कर रही है, और अगर किसी किस्म की जो शिकायत है वो 1139 पे दर्ज करवाएं ताकि उसका फौरी इजाला किया जाए। मजीद खबरें होंगी। आजाद कश्मीर में दहशत गर्दों का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। शरपसंद अनासर का आजाद कश्मीर के अमन को तबाह करने का मंसूबा बेनकाब हो गया। वजीर दाखिला आजाद कश्मीर का कहना था कि हकूक की आड़ में कुछ शरपसंद अनासर अपने मजमूम मकासद के लिए कार फरमा है। आजाद कश्मीर के वजीर दाखिला वक्कार नूर और IG राना अब्दुल जब्बार का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा कि आज़ाद कश्मीर में हुकूक की आड़ में कुछ अनासिर अपने मजमूम मकासद के लिए कार फरमा है। 27 अक्टूबर 2024 को शुजाबाद चेक पोस्ट पर फायरिंग के वाक़े में कांस्टेबल सज्जाद रेशम शहीद हुए। अंदनाक वाक़े की तफ्तीश में कुछ मशकूक अनासिर की शनाख्त हुई। वाक़े में जरनौश नसीम उर्फ कासिम, उसामा उर्फ मोहम्मद और हंजिला उर्फ उल्फत मतलूब मुलजमान के तौर पर सामने आए हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने एक्सपो सेंटर में मुनाकिद करदा फर्नीचर नुमाइश में शुरका से बात करते हुए कहा कि बाहमी मुशावरत से कोई बिल या कोई चीज सामने आएगी तो हम उसे सपोर्ट करेंगे। इससे मुताल्लिक मजीद हमें बता रही हैं दुआ गफ्फार। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर कराची में, जहाँ 4 रोज़ा पाकिस्तान इंटीरियर डिज़ाइनर फेस्टिवल लगाया गया है, जिसमें जो है आज उसका पहला रोज़ जारी है और लोगों का रुझान जो है वो अभी से देखा जा रहा है कि इस एक्सपो सेंटर की नुमाइश में लोगों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ना सिर्फ इंटीरियर फर्नीचर बल्कि साथ ही साथ जो घर के डेकोरेशन सामान हो गए, सोफ़ा सेट हो गया, एसेसरीज़ हो गए, कर्टन्स हो गए, कारपेट हो गए और दीगर अशिया यहाँ पर मौजूद है जो लोग यहाँ पर आके एक छत के नीचे खरीद सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर लोगों का क्या रुझान है। मुझे बताइएगा लोगों का क्या रुझान है, आज पहला दिन है और लोगों का क्या रुझान देख रहे हैं आप? तो स्टार्ट हुआ है, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अभी स्टार्टिंग है, लोग आ रहे हैं, अच्छा रिस्पांस है, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक अच्छा ही करेंगे। दुकानदारों का भी यही कहना है कि आज अभी पहला रोज़ है और जो है अभी से लोगों का जो है रुझान अच्छा देखा जा रहा है। यहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तानी इंटीरियर डिज़ाइनर्स बल्कि ना ही सिर्फ कराची के बल्कि दीगर शहरों से भी यहाँ पर आगे नुमाइश का हिस्सा बने हैं। यहाँ पर 100 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं जो कि ये नुमाइश है मज़ीद 3 रोज़ तक जारी रहेगी। जी, नेशनल हर्बलिस्ट डे पर हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद उन अफराद की खदमात को सराहना है जो जड़ी बूटियों और कुदरती पौधों के जरिए मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करते हैं। कुदरती इलाज का तरीकाकार दुनिया के कई पुराने तिब्बी निज़ामों का हिस्सा रहा है, जैसे आयुर्वेद, तिब यूनानी और चीनी तिब।
इन तरीकों में केमिकल के बजाय जड़ी बूटियों, फूलों, पत्तों और दीगर कुदरती अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है, जो सेहत पर मुस्बत असर डालने के साथ साथ महफूज भी होते हैं। आजकल के दौर में जब मस्नूई दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ रहे हैं, लोग एक बार फिर कुदरती इलाज की तरफ रुजू कर रहे हैं। हर्बल तरीका इलाज जिस्मानी ही नहीं बल्कि जहनी सुकून के लिए भी मुफीद माना जाता है। 17 अप्रैल को मनाया जाने वाला नेशनल हर्बलिस्ट डे हमें ये सिखाता है कि फितरत में शिफा मौजूद है और हमें इस इल्म को संभाल कर रखना चाहिए। ये दिन सेहतमंद जिंदगी, माहौल से मोहब्बत और रवायती इलाज के तहफ़्फ़ुज़ की याद भी दिलाता है। हिफ्सा फरीद, 5 न्यूज़, कराची। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।